alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Shams, one of the founding members of Kyan Book Series. Today we'll solve the MCQs of GIT. Question number 1. A 70-year-old male has valve swelling in the left parotid gland. It is 6 cm in diameter and has gradually reached the present size over a period of 4 years. FNAC actually shows chondromyxoid epithelial and myoepithelial cells. What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis is pleomorphic adenoma, and the reason is that कि पैरोटिड की सबसे कॉमन स्वेलिंग इज pleomorphic adenoma, but it is an indication. It's not enough to make a diagnosis. So it is an indication कि pleomorphic adenoma is the most common tumor of parotid gland. To confirm the diagnosis, जो FNAC है chondromyxoid stroma, epithelial cells and myoepithelial cells, these are the diagnostic features of pleomorphic adenoma. So the option A is the correct answer. Question number 2. All of the following statements are true about colorectal carcinoma except high fiber diet prevents help in its prevention. Yes, it's true. It is the most common malignant tumor of large intestine. Yes, it is true. More than 99% are well differentiated squamous cell carcinomas. No, it's not true. Majority of colorectal carcinoma develops through adenoma carcinoma sequence. Yes, it is true. Villus adenoma of more than 4 cm size in the large bowel is a strong predisposing factor. Yes, it is true. So the correct option is option C. उसके बाद question number 3. Which of the following statements is not true of chronic gastritis? Eosinophilic gastritis typically affects female. Number 1, it's not true. Dysplasia is more marked into autoimmune gastritis. It is true. Cigarette smoking is strongly associated with chronic gastritis. Yes, it is true. उसके बाद the mucosa, that is lamina propria, contains inflammatory infiltrates of neutrophils. It is true. Or individuals with H. pylori induced chronic gastritis is at risk for developing chronic carcinoma. Yes. मोस्ट लाइकली दैट इज माल्टोमा के रिस्क पे होते हैं. ऐसे पेशेंट जिनको एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो, दे आर एट द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माल्टोमा. Adenocarcinoma and maltoma, it is very well mentioned in Pathoma page 104. So the correct option is option A. Question number 4. The most common site for carcinoid tumor. The most common site for carcinoid tumor is appendix. Option D. उसके बाद आ जाएगा the celiac disease is also called as celiac spruce. Celiac spruce is the celiac disease. Topical spruce is another disease. ठीक है, topical spruce एक अलग disease होती है और celiac spruce जो सा है that is an other disease. Both are different. Remember, topical spruce और celiac spruce में आपने differentiate करना हो तो क्या करें, दोनों के symptoms same होते हैं. ठीक है, तो बड़ा मज़े का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर ये है कि अगर एंटीबायोटिक से एक सीलियाक डिजीज़ ट्रीट हो जाए, आपने एंटीबायोटिक्स दी और वो सीलियाक डिजीज़ ट्रीट हो गई है, देन इट इज़ टॉपिकल स्प्रूस. ठीक है, बिकॉज टॉपिकल स्प्रूस इज कॉज बाय एन अननोन ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड्स टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो टॉपिकल स्प्रूस में अगर आप एंटीबायोटिक्स दें तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन सीलियाक डिजीज़ एंटीबायोटिक देने से ठीक नहीं होती है. सीलियाक डिजीज़ उस वक्त ठीक होगी जब आप ग्लूटेन फ्री डाइट दोगे. तो इस तरीके से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6. एच पाइलोराई काजेस पेप्टिक अल्सर बाय. आंसर इज बी नॉट इन्वेड द म्यूकोजा बट स्क्रेटिंग प्रोटीएसिस. बिग्रॉबिन्स में बहुत डिटेल के साथ इसकी पैथोजेनेसिस दी हुई है. Next is most common cause of chronic gastritis. Chronic gastritis की most common cause. This is very very important question. Chronic gastritis की दो causes. 90% of the chronic gastritis is caused by H. pylori. ठीक है, 90% of the chronic gastritis is caused by Helicobacter pylori infection. So this is option A. उसके बाद आपके पास आ जाएगा दैट इज़ ए मेल ऑफ 55 विद ए हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एंड एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हैज ए पैल्पेबल लेफ्ट supraclavicular lymph node and a biopsy actually reveals metastatic adenocarcinoma. The most common diagnosis is
दैट इज़ कॉल्ड एज कार्सिनोमा स्टमक। स्टमक का कार्सिनोमा होता है जो कि लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, एंड दीज आर कॉल्ड एज विरकुस नोड। विरचू नोड भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग विरकू पढ़ते हैं, सो दिस इज़ विरकू नोड। ठीक है, दिस इज़ विरकू नोड। और बाज़ औक़ात ये जो स्टमक का कार्सिनोमा है ये पेरियम्बलाइकल रीजन पे जाके भी नोड्स बना देता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, एंड इट इज़ सीन विद इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो स्टमक का कार्सिनोमा है ये बाइलैटरली ओवरीज को इफेक्ट करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन पैथोमा पे कार्सिनोमा स्टमक में दी हुई हैं, आपने इनको एक मरतबा पढ़ देना है। 3 इसकी मेट्स हैं, सीएस स्टमक के 3 मेट्स होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड दैट इज विकोस नोड, पेरियम्बलाइकल एरिया सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, और बाइलैटरली ओवरीज क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दैट। Option B is the correct option. Barrett's esophagus is a predisposing factor for. Barrett's esophagus is a predisposing factor for. It is adenocarcinoma. Why adenocarcinoma? Adenocarcinoma ये है कि Barrett's esophagus को आप समझो ये होता क्या है। जब GERD होता है, GERD is excessive reflux of the acid from stomach to the esophagus. ठीक है, let me show you that. Okay, we imagine that this is the stomach, yeah, this is the stomach and this is the esophagus। ठीक है, this is esophagus and this is stomach। तो जब बहुत सारा एसिड बार बार स्टमक में जाएगा, बहुत सारा एसिड, ठीक है, ऑल दी नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारा एसिड बार बार ये लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस को इफेक्ट करेगा तो स्क्वेमस एपिथेलियम मेटाप्लेजिया, मेटाप्लास्टिकली स्क्वेमस एपिथेलियम में मेटाप्लेजिया होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी कोलमनर एपिथेलियम में। और जब ऐसा होता है कि इसोफेगस की स्क्वेमस एपिथेलियम कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट इसोफेगस इज कॉल्ड एज बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, अब बैरेट्स इसोफेगस में इधर ऑलरेडी कोलमनर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोलमनर सेल्स पाए जाते हैं क्योंकि नीचे जो स्टमक है, स्टमक से बहुत सारा एसिड आ रहा है। अब इनमें ऑलरेडी एक म्यूटेशन आ गई हुई है कि इन्होंने अपनी डिफ्रेंशिएशन को चेंज किया है। सो दीज कोलमनर सेल्स आर ए हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। इनमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और हमेशा जो ग्लैंड से कार्सिनोमा डेवलप करता है दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। तो नंबर 1, इनमें ऑलरेडी म्यूटेशन हुई होती हैं तो ये ऑलरेडी म्यूटेटेड होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनमें ग्लैंड्स होते हैं तो इनसे फिर जो कार्सिनोमा डेवलप करता है दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। सो दैट्स वाई कि बैरेट्स इसोफेगस के केस में एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, hallmark of celiac disease, T cell mediated chronic inflammatory reaction with an autoimmune component, always it's the T cell। आप celiac disease की जो पैथोजेनेसिस वाला टेबल है बिग रॉबिन्स पे वो पढ़ो, it is T cells that do the nasty thing। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, chronic gastritis is defined as chronic inflammation leading to mucosal atrophy and interstitial metaplasia, that's option B। Chronic inflammation with mucosal atrophy, no, that's not true। Chronic inflammation of gastric mucosa and submucosa, no, that's not true। Chronic inflammation of gastric mucosa of transient nature, नहीं, अगर transient nature की होगी तो वो chronic नहीं होगी। Chronic inflammation with erosive gastritis, no, that's not true। Reflux esophagitis is caused by increase रेस्टिंग टोन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, नहीं, इंक्रीज रेस्टिंग टोन से तो कभी नहीं होगा। डिफेक्टिव इसोफेजियल एंटी रिफ्लक्स मैकेनिज्म, यस, इससे हो सकता है। पॉलीपोडल ग्रोथ इन द लोअर इसोफेगस, नहीं, इससे भी इसोफेजाइटिस नहीं होगा। इसोफेजियल वेब, इससे भी इसोफेजाइटिस नहीं होगा। और ए पेरिस्टाल्सिस से एक लेजिया हो सकता है, इसोफेजाइटिस नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिजनट malignant cells are found in diffuse gastric carcinoma, without any doubt it's the option A। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इज मोस्ट कॉमनली सीन इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। 90% ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाय एच पाइलोराई।
Question number 16, that the culprit in the inflammatory bowel disease, is the CD4 positive T cells. Option B. अभी तक आप GIT के MCQs देख लो, ये ना सारा फैक्ट बेस MCQs हैं, सारा फैक्ट बेस है कि इसके अंदर कोई डायग्नोस नहीं पूछ रहे, बीमारी की छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो बार बार पूछ रहे हैं. Which of the following is a major predisposing factor for the development of pseudomembranous colitis? Antibiotic use. गट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गट को कुछ दूसरे बैक्टीरियाज को इन चेक रखते हैं. बैक्टीरिया आपस में भी एक दूसरे को चेक रखते हैं, ठीक है. स्केवेंजर बैक्टीरियाज उनको कहते हैं. कि कुछ बैक्टीरियाज गट के अंदर ऐसे मौजूद होते हैं, लेट्स से इट्स अ कोलॉन. ये हमारे पास एक कोलॉन है, ठीक है. इस कोलॉन में एक फ्लोरा है ए बैक्टीरिया का और दूसरा फ्लोरा है बी बैक्टीरिया का, ठीक है. तो जो ए बैक्टीरिया हैं दे कीप इन चेक द बी बैक्टीरिया. ये बी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते. एंड दीज बी बैक्टीरियाज आर एक्चुअली वेरी 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 हार्मफुल टू द इंटेस्टाइन, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इंटेस्टाइन से. तो अगर आप कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे दो, अगर गलती से आप कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे दो जो इन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दे, कोई एंटीबायोटिक ऐसी ले ली है आपने और उसका ओवर यूज़ किया है, ओवर यूज़ करने से क्या होगा कि सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे. सो दीज बैक्टीरिया विल गो नट्स, दीज बैक्टीरिया विल गो क्रेजी, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट इरोडिंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द कोलॉन, ठीक है. उसकी वजह से जो बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. तो एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, ठीक है. ये आपने एंटीबायोटिक्स के नाम भी पढ़े होंगे फार्मा के अंदर. क्वेश्चन नंबर 18, ए 57-year-old woman with anemia is found to have decreased vitamin B12 level. एनीमिया है और विटामिन B12 के लेवल्स डिक्रीज हैं. Antibiotic to intrinsic factor are identified. Levels of all other vitamins are within normal limits. Which of the following is most likely to be associated with this condition? Dietary deficiency अगर होती तो फिर एंटीबायोटिक अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर के होने का कोई तुक नहीं बनता. डाइटरी डेफिशिएंसी में फिर बताते कि पेशेंट जो सी है वो मैल नरिश है, पेशेंट वीगन हो गई है, पेशेंट ने मीट खाना छोड़ दिया है, अब पेशेंट सिर्फ सब्जियां खा रही है, तो उसके अंदर ये हिस्ट्री होती है, ठीक है. इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेंगी कि ये जो पैराइटल सेल्स होंगे स्टमक म्यूकोजा पे उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी. वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से जो स्टमक है उसकी एपिथेलियम की एट्रोफी हो जाएगी. स्टमक की जो लाइनिंग है म्यूकोजा उसकी एट्रोफी हो जाएगी. उसकी एट्रोफी हो जाएगी, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा नहीं, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा नहीं तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब कैसे होगा? विटामिन B12 नहीं अब्जॉर्ब होगा तो दैट विल इवेंचुअली लीड टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है. तो इसके अंदर बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो तो ऑलमोस्ट बे चुके हैं कि डूडिनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेल नरिशमेंट की फिर हिस्ट्री होती है और फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के सारे फीचर होते हैं. लेकिन इंट्रिंसिक एंटीफैक्टर एंटीबॉडीज टू इंट्रिंसिक फैक्टर, इट्स अ वेरी बिग क्लू. ये बहुत बड़ा क्लू है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद स्टमक लाइनिंग, देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद म्यूकोजा ऑफ स्टमक. तो इट इज़ द ओनली डिजीज़ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस जिसके अंदर म्यूकोजा ऑफ स्टमक ख़राब होती है. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, a 25-year-old man has been experiencing intermittent diarrhea which over the years progressed to severe diarrhea alternating with constipation, rectal bleeding, passage of mucus. The abdomen is tender over the left iliac fossa, colonoscopy inflammation limited to rectum with no higher lesion. Which of the following is the diagnosis ulcerative colitis? ज्ञान बुक सीरीज पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है. Ulcerative colitis is the colitis. It is the inflammation of colon. Most commonly rectum is involved. ठीक है, most commonly rectum is involved. Inflammation is limited to mucosa and submucosa. और उसके बाद है there is continuous involvement. ठीक है, तो ये सारे के सारे rectal bleeding, most commonly ulcerative colitis. Only 5% of the patient with Crohn's disease presents with rectal bleeding. ठीक है,
So the correct option is option E, ulcerative colitis. H. pylori can be detected by which of the following test? यूरिया ब्रेथ टेस्ट से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का H. pylori डिटेक्ट होता है. This is very good test. यूरिया ब्रेथ टेस्ट is one of the most sensitive test. Stomach biopsy, yes of course, serology से हो जाता है. स्टूल कल्चर से भी हो सकता है, लेकिन कोलोनोस्कोपी से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो H. pylori है दैट इज प्रेजेंट इन स्टमक और कोलोनोस्कोपी होती है कोलोन की. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. A 73-year-old female has iron deficiency anemia. अच्छा 73 बहुत ज़्यादा एज है, मतलब शी हैज़ अंडरगॉन मेनोपॉज. तो अब थ्रू मेंस्ट्रुएशन तो इसका ब्लड लॉस नहीं हो सकता. दिस इज़ क्लियर कट एस्टैब्लिश थिंग. तो अनीमिया की कॉज अब कुछ और ही है. अब अनीमिया की कॉज मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ठीक है. सो देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन. शी हैज़ नो विजाइनल ब्लीड, ओके. शी हैज़ नो हेमेटेमेसिस, ओके. She has no hemoptysis or melena, yes, okay. However, the stool guaiac test result is positive. A colonoscopy reveals an obstructive lesion. What is the most likely obstructive lesion that is most likely to be? Colon का जो carcinoma है that is adenocarcinoma. So it is the most common carcinoma of colon, that is adenocarcinoma. ठीक है, adenocarcinoma is the most common carcinoma. एंड इट प्रेजेंट्स विद PR ब्लीड, पर रेक्टल ब्लीड. और यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टूल गुएक टेस्ट. स्टूल गुएक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप डिटेक्ट करते हो अकल्ट ब्लड. अब अकल्ट ब्लड क्या ब्ला है? एक होता है कि स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, स्टूल प्लस ब्लड, इसको कहते हैं मेलिना. ठीक है, मेलिना नहीं, खैर मेलिना और चीज़ होती है, लेकिन एक फीचर ये है कि स्टूल और ब्लड एक साथ आ रहे हैं. ठीक है, एक फीचर ये है दैट इज कॉल्ड एज अकल्ट ब्लड. अकल्ट ब्लड माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस है इन द स्टूल, जो आम आंख से नज़र नहीं आता. स्टूल नॉर्मल कंसिस्टेंसी के होंगे, स्टूल का कलर भी नॉर्मल होगा जैसा होता है, रेड बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उससे ब्लड लॉस हो रहा होगा, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली ब्लड लॉस हो रहा होगा जो नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा. तो इस अकल्ट ब्लड को चेक करने के लिए दिस टेस्ट इज परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज स्टूल गुएक टेस्ट. ठीक है, तो स्टूल गुएक टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि PR ब्लीड हो रही है. ठीक है, पेशेंट इज ब्लीडिंग पर रेक्टली. तो एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा and it presents with bleeding, so that's why हमारा यहाँ पे most likely option कौन सा है, that is adenocarcinoma. Okay, so question number 22, that is Barrett esophagus is columnar metaplasia of lower third of esophagus. That is very clear cut option B. Replacement of squamous epithelium by columnar epithelium in the upper one third of the esophagus, no, lower one third of the esophagus. Seen in young patient, सीन इन यंग पेशेंट नहीं, आमतौर पे ये GERD के पेशेंट में होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, तो यंग तो नहीं, अडल्ट्स के अंदर हो सकता है. ठीक है, स्क्वेमस कार्सिनोमा इज मोर कॉमन, नो, एडिनोकार्सिनोमा इज मोर कॉमन. इट इज़ नॉट अ प्रीमलिग्नेंट कंडीशन, इट इज़ अ प्रीमलिग्नेंट कंडीशन. इट predisposes to the adenocarcinoma. It is a huge risk factor for the development of adenocarcinoma. So question number 23, that is severe autoimmune gastritis is associated with low gastric level to achlorhydria. Low gastric level to achlorhydria. autoimmune gastritis के अंदर क्या होता है, there is atrophy of mucosa. जो एपिथेलियल म्यूकोजा है उसकी एट्रॉफी हो जाएगी. अब एपिथेलियल म्यूकोजा की एट्रॉफी हो गई है तो गैस्ट्रिक HCl तो नहीं बनेगा. अगर HCl नहीं बनेगा तो दैट इज़ लो गैस्ट्रिक लेवल टू एक्लोरहाइड्रिया, तो HCl की प्रोडक्शन हो जाएगी नील, ज़ीरो. ठीक है, तो दैट्स वाई ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस लीड्स टू लो लेवल्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और एक्लोरहाइड्रिया. इसके साथ साथ ही एक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के अंदर गैस्ट्रिन के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और G सेल हाइपरप्लेजिया होता है. और अब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की तो हो गई है एट्रॉफी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा एंड पेशेंट विल हैव मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इकट्ठी होती हैं.
एक क्लोरहाइड्रिया हो जाता है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के अंदर एक क्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा और जी सेल हाइपरप्लेजिया, एंट्रल जी सेल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. सो ए फॉर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, ए फॉर ए क्लोरहाइड्रिया, ए फॉर अनीमिया, ए फॉर एंट्रल जी सेल हाइपरप्लेजिया. ठीक है. एंड ए फॉर एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा. तो ये 4 ए आपने याद रखने हैं ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के: एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, ए क्लोरहाइड्रिया, एनीमिया एंड एंट्रल जी सेल हाइपरप्लेजिया. This is severe autoimmune gastritis. Question number 24. A patient is taking medication for rheumatoid arthritis. Most likely it is NSAID. Develop burning epigastric pain and vomiting after few days. Which of the following form of gastritis would most likely be the patient suffering from? Most likely suffering from that is acute gastritis. ठीक है. This is acute gastritis. जो एनसेड की वजह से होता है दैट इज एक्यूट गैस्ट्राइटिस. अगर आप पैथोमा खोलें तो पैथोमा में सेकंड रिस्क फैक्टर है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, दैट इज एनसेड्स. ठीक है. तो यहाँ पे रूमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसने बहुत सारे एनसेड्स खाए होंगे एंड दैट इज इवेंचुअली लीडिंग टू एक्यूट गैस्ट्राइटिस. Okay, so question number 25. A 44-year-old male presented with dysphagia, weight loss. On endoscopy, there is a fungating ulcerative lesion noticed at a distance of 20 centimeter from the incisors teeth. The most likely lesion is squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma presents with fungating ulcerative lesion. That is squamous cell carcinoma. Question number 26. The most common location of pancreatic neoplasm is the head of pancreas. और इसीलिए चले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि let us say this is duodenum. ठीक है. This is duodenum. ये है proximal duodenum. ये second part of duodenum. This is the third part. और इसी के साथ एक फोर्थ पार्ट भी है. ठीक है. यहाँ पे है पैनक्रियास का हेड और इस तरफ जा रही है टेल स्प्लीन की तरफ. ठीक है. दिस इज द हेड ऑफ पैनक्रियास. अब यहाँ से आती है CBD, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है इधर सेकंड पार्ट ऑफ डूडिनम में, इधर वाया एम्पुला ऑफ वेटर. तो मोस्ट लाइकली जो कार्सिनोमा डेवलप करता है पैनक्रियास के अंदर दैट इज हेड ऑफ पैनक्रियास. ठीक है. तो इस कार्सिनोमा की वजह से जो CBD है दैट बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, दैट बिकम हिंडर्ड. ठीक है. CBD की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जितना भी बाइल है दैट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड इट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस. तो पैनक्रियास के कार्सिनोमा के अंदर, CA पैनक्रियास के अंदर, वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फॉर द पेशेंट इज़ जॉन्डस. और वो जॉन्डस क्यों होता है? क्योंकि कार्सिनोमा मोस्ट लाइकली हेड को इन्वॉल्व करता है पैनक्रियास के, और वहाँ पे होती है CBD कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से डायरेक्ट बिलिरूबिन्स के लेवल बढ़ जाते हैं एंड पेशेंट प्रेजेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस. Question number 27. An elderly male presents with a history of dysphagia, vague upper abdominal symptoms. Dysphagia, upper abdominal symptoms. Clinical examination पे anemia, mass epigastrium, enlarged left supraclavicular lymph node. Left supraclavicular lymph node is highly likely gastric carcinoma. Verrucous node, highly likely gastric carcinoma. इधर आपका डायग्नोसिस बन गया, you don't need to go further. लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं. पर आपका डायग्नोस बन गया, आपके माइंड में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्लिक करना चाहिए. लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड सुन के आपके माइंड में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्लिक करना चाहिए. सो हिज लैब फाइंडिंग्स इंक्लूड नॉर्मल TLC, ओके, नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन, नॉर्मल TLC, और ये नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन का मतलब है नो लिवर कार्सिनोमा. HCC इज रूल्ड आउट. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम? ही इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. This is verrucous node, highly characteristic feature of CA stomach. So this is gastric carcinoma. Which salivary gland is most frequently site for the tumor involvement? That is parotid gland. That is A, parotid.